Good morning, students. Welcome back to your English reader class. Children, last time I already taught this chapter one page. Today I will revise this one, and I'm very sorry to say that I'm not well, so I'm not taking your Google Meet classes. I'm sending some videos. You please see for few days. After that, I will take your Google classes. And those children are attending that Google classes. They also kindly see this video. And after this video, I will send some question answers for you. Okay. So let's start lesson one. Page number one. A friend for Flush. Flush felt very lonely. He felt lonely because he was the only horse on Yellow Brown Farm. So that day I said to you, this is the story about one horse. He was staying in one yellow farmhouse. There lot of animal also staying. You can see here like horse, cow, sheep, duck, pig, isn't it? Like this geese, lots of animals are there. Let's start lesson 1, page 2. A friend for Flush. Flush felt very lonely. He felt lonely because he was the only horse on Yellow Brown Farm. It's all right for those cows, he thought. There are lots of other cows in the field. They can all move and play all together all day long. So we can see in this chapter there is a one horse, his name is Flush, and he was staying in one yellow brown farm. Along with lots of animals are there. You can see in the picture like cow, sheep, goat, pig, geese. Like this lot of animals staying on the farm. But the horse he is alone. He don't have any friends, any family with him. सो दिस हॉर्स इज फीलिंग लोनली। यहाँ हम देखते हैं इस चैप्टर में फ्लैश जो है एक हॉर्स का नाम है जो एक येलो ब्राउन फार्म में रहता है। उसका कोई फैमिली नहीं है, कोई फ्रेंड नहीं है, इसलिए वो अपने आप को क्या महसूस करता है, अकेला महसूस करता है, यानी लोनली महसूस करता है। और उसी तरह हम दूसरी तरफ देखते हैं कि उसके साथ बहुत सारे एनिमल्स हैं जैसे काऊ, शिप, गोट, पिग, डक, गीज़। और इनके ये क्या है, ये सारे एनिमल्स अपने साथ और भी एनिमल के साथ रहते हैं, अपने फैमिली के साथ रहते हैं, फ्रेंड्स के साथ रहते हैं। तो एक दिन ये फ्लैश अपने फार्म यार्ड में घूमने के लिए निकलता है। तो हम सेकंड पैरा में देखेंगे यहाँ कि वो जो घूमते हुए सबसे पहले वो जाता है काऊ के शेड में और वो सोचता है इन सब काऊ को देखकर कि ये सारे काऊ अपने फैमिली के साथ रहते हैं। सारा दिन ये लोग एक दूसरे से बातें करते हैं, खेलते हैं और ये लोग खुश रहते हैं। और दूसरी तरफ देखते हैं हम ये हॉर्स जो है खुद को बहुत अकेला फील करता है फिर से कि उसका कोई फैमिली नहीं है। Then we'll come to the next para. Flush wandered over the next field. It's all right for those ships, shides Flush. There are lots of other ships in the field. They can all bath together all day long, but I am the only horse. जब वो दूसरी तरफ घूमने के लिए निकलता है तो वो कहाँ पहुँचता है, शिप के जगह पे जहाँ शिप रहते हैं। और यहाँ वह देखता है कि शिप भी अपने फैमिली के साथ हैं, बहुत सारे शिप एक साथ रहते हैं। तो वो सोचता है कि ये लोग भी कितने खुश हैं और एक साथ रहते हैं, सारे दिन एक दूसरे से बातें करते और खेलते हैं। फिर से वह हॉर्स जो है फ्लैश अपने आप को यहाँ पर भी अकेला महसूस करता है और वो सोचता है कि मैं तो फिर से अकेला हूँ क्योंकि मेरा कोई दोस्त नहीं, कोई फैमिली नहीं है। नाउ विल कम टू द नेक्स्ट पेज, page number 3. He wandered over to the farmyard. It's all right for those geese, thought Flush. There are lots of other geese in the farmyard. They can cluck and play games all day long, but I am lonely. ओनली हॉर्स। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि ये जो हॉर्स है फिर से घूमने के लिए जब फार्म यार्ड में जाता है
तो वहाँ वो किधर पहुँचता है, यहाँ ये गीज़ के पास पहुँचता है, जहाँ बहुत सारे गीज़ एक साथ रहते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे, और ये लोग क्या करते हैं, एक साथ खेलते हैं। तो इन्हें देखकर भी फ्लश फील करता है कि दे ऑल टुगेदर प्लेइंग ऑल डे लॉन्ग, बातें करते एक दूसरे से खेलते हैं। और दूसरी तरफ फिर से बेचारा ये हॉर्स जो है, फ्लश है, वो दुखी हो जाता है और इस फीलिंग लोनली, फिर से अकेला महसूस करता है, क्योंकि उस पूरे फार्म यार्ड में वो अपने आप को क्या है, अकेला पाता है। नाउ विल कम टू द नेक्स्ट। फ्लश wandered back to his field. He thought all of the other lucky animals on Yellow Brand Farm. फिर वो जो क्या अपने फील्ड में वापस आता है और वो सोचता है कि यहाँ जितने भी एनिमल्स रहते हैं इस फार्म यार्ड में, सब कोई क्या है, अपने फैमिली के साथ रहते हैं और बहुत खुश रहते हैं, और मैं ही एक अकेला हूँ, जो मैं अकेला रह रहा हूँ, अकेला महसूस, बहुत दुखी हो जाता है। और वो सोचता है ये लोग बहुत लकी हैं कि वो अपने फैमिली के साथ है। देयर आर लॉट्स ऑफ पिग्स to grunt together, lots of hens to cluck together, and lots of ducks to quack together, but there is only me. तो ये क्या, अपनी शेड में जब वो आ जाता है, तो वहाँ शेल्टर में, तो वो क्या फील करता है, सॉरी, अपने स्टबल में जब आता है, मैंने अपनी जगह पे जिस फील्ड पे वो रहता है, तो वो सोचता है कि इस फार्म यार्ड में बहुत सारे पिग है, जिसका साउंड क्या है, ग्रांट। वो अपने साउंड से एक दूसरे से बातें करते हैं, उनके भी फैमिलीज़ रहते हैं। फिर बहुत सारे हैन रहते हैं, वो लोग भी अपने फैमिली के साथ बातें करते हैं, खेलते हैं। डक्स हैं जो वो भी अपने फैमिली के साथ रहते हैं। लेकिन बेचारा ये हॉर्स जो है, खुद अकेला पड़ जाता है। Tears started to fall from Flush eyes. तो फिर ये सोचते सोचते फ्लश की आंखें भर जाती है और वो क्या करता है, रोने रहता है। टीयर्स मतलब आंखों से आंसू बहना, ठीक है। तो ये बहने लगता है। बिन द वाइस काइंड स्कैरक्रो सॉ फ्लश क्राइंग एंड peeped over the hedge. तो जब वो अपने स्टेबल में रोता है हॉर्स फ्लश, तब उनकी देखभाल करने के लिए वहाँ एक व्यक्ति रहता है, जिसे हम स्केयर क्रो कहते हैं, जिसका नाम है बिन। आप देख सकते हैं यहाँ पर शेड दिख रहा है, ये बिन है। वो जब हॉर्स को देखता है कि वो रो रहा है, उसकी आंखें नम हो गई हैं, तो वो उसके पास जाता है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 4 में। Now we'll see. You're not the only one who is alone, said Ben. तो बिन उससे क्या कहता है, हॉर्स से, कि फ्लश, you're not only, तुम अलग, केवल अकेले नहीं हो, मैं भी अकेला हूँ। Look at me, I am also the only scarecrow. यहाँ पर मैं अकेला ही एक scarecrow हूँ जो सबकी देखभाल करता हूँ। True, said Flash, and he stopped crying. जब फ्लश को पता चलता है कि उसके जैसा एक और व्यक्ति यहाँ पर है जो अकेला है, जिसके फैमिली उसके साथ नहीं है, वो भी अपने आप को अकेला फील करता है, तो वो रोना बंद कर देता है। Cheer up, said Bin. No one need to be alone on the Yellow Brand Farm. तो जो बिन होता है वो फ्लश से कहता है, अब स्माइल कर दो, खुश हो जाओ, चलो, यहाँ पर येलो ब्रांड फार्म में कोई भी अकेला नहीं है, किसी को अकेले रहने की ज़रूरत नहीं है। तो फ्लश पूछता है, बहुत आश्चर्यचकित होता है, बोलता है, रियली, आस्क्ड फ्लश, वो पूछता है, सच में? ऑफ कोर्स, सेड बिन, यू कैन बी फ्रेंड विथ ऑल द एनिमल्स। वो उसे समझाता है कि फ्लश, तुम अकेले नहीं हो, तुम और भी दूसरे एनिमल के साथ दोस्ती कर सकते हो। यू कैन प्ले विद द काउ एंड द sheep, the geese and the pigs, the hen and the ducks and all the other animals on the farm. वो उसे ये भी समझाता है कि तुम दोस्ती भी कर सकते हो और सारे एनिमल के साथ खेल भी सकते हो, जैसे काउ, शिप, गीज, पिग, हैन, डक, इन सब के साथ तुम इस फार्म यार्ड में खेल भी सकते हो। एंड बेस्ट ऑफ ऑल, सेड बिन, सॉरी,
एंड बेस्ट ऑफ ऑल सेड बिन। तो बेन कहता है कि ये तो बहुत अच्छा है, तुम्हारे लिए बहुत लकी है, बेस्ट ऑफ लक फॉर यू, कि तुम्हारे लिए इतने अच्छे फैमिलीज़ मिले हैं। वो उसे समझाने की कोशिश करता है। यू कैन प्ले विथ मी, और कहता है उससे अच्छी बात है कि तुम मेरे साथ भी खेल सकते हो। वो फ्लश को बताता है कि तुम मुझसे भी खेल सकते हो। आई हैव अ ब्रूमस्टिक लेग एंड आई कैन ओनली होप अबाउट स्लोली सो यू कैन गिव मी राइट्स। तो वो कहता है, देखिए यहाँ पे उसके पास लकड़ी का पैर है ना, और वो केवल एक ही पैर है उसके पास, और वो उससे कहता है कूद कर चल सकता है, जंप करते हुए। वो चल नहीं सकता। तो वो हॉर्स से कहता है कि तुम मुझे अपने राइड ले सकते हो, मतलब उससे वो अपने पीठ पर बैठाकर घुमाने लेके जा सकता है। फ्लश लुक्ड द Ben's one wooden leg and then looked at his own four fast legs। तो जब वो फ्लैश बिन के एक लकड़ी के पैर को देखता है, उसके बाद वो अपने पैरों को देखता है जो उसके पास 4 पैर है, बहुत सुंदर और बहुत, जिससे वो बहुत तेज़ दौड़ सकता है। तो फ्लैश देन रियलाइज हाउ लकी ही वॉज। वुड यू लाइक a ride now? asked Flash. Oh yes, please, said Ben, and he hopped on। तो यहाँ पर क्या है, जब फ्लैश बेन को देखता है और उसके वुडन लेग को देखने के बाद वो जो अपना लेग को देखता है कि उसके पास इतने सुंदर लेग हैं, बहुत तेज़ दौड़ने वाले, तब उसे रियलाइज़ हो जाता है कि वो बहुत लकी है जो उसके पास ईश्वर ने 4 पैर दिए हैं, और वो बहुत सुस्त है जिससे वो खुद राइड कर सकता है, चल सकता है। तो फिर वो क्या कहता है, फ्लश से कहता है कि तुम क्या मेरी सवारी करना पसंद करोगे? तो फिर बिन बहुत खुश हो जाता है, बोलता हाँ ज़रूर, और वो कूद कर क्या करता है, हॉर्स के ऊपर बैठ जाता है। नाउ वेलकम टू द पेज नंबर 5। द टू ऑफ देम बिकम ग्रेट फ्रेंड। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ ये दोनों ही एक अच्छे दोस्त बन जाते हैं। फ्लश गेव बेन राइड्स एवरी डे एज दे विजिट ऑल देयर न्यू फ्रेंड्स ऑन येलो ब्रांड फार्म। इसके बाद फ्लश अकेला नहीं रहता, वो हर दिन बेन को अपने पीठ में बैठा लेता है और सारे एनिमल्स के घर घर जाता है, उनसे खेलता है, बातें करता है, और फिर उसके अंदर जो लोनली फील होती है वो दूर हो जाती है और वो बहुत सारे फ्रेंड्स वहाँ बना लेते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट, आई होप दिस चैप्टर यू हैव अंडरस्टूड। इन दिस चैप्टर माय डियर स्टूडेंट, यू ऑल्सो मेक अ फ्रेंड। आप लोग अगर अकेले हो तो अपने आप को अकेले नहीं समझना है। आपके आसपास में जो आपके फ्रेंड्स हैं, आपके मम्मी पापा भाई बहन हैं, इन सब से बातें करिए, उनके साथ घुलिए मिलिए, तो आप अपने आप को अकेला नहीं पाएंगे। अगर आप अकेले फील करोगे तो फिर आप रोने लगोगे, आप किसी की बातें नहीं मानोगे, आप ज़िद करने लगोगे। सो दिस स्टोरी रियल मेक यू अंडरस्टैंड दैट नो वन इज़ अलोन इन द वर्ल्ड। ये स्टोरी ये बताता है कि कोई भी इस दुनिया में ईश्वर ने जिन्हें भेजा है वो अकेला नहीं है, उनके साथ कोई ना कोई हमेशा उनके साथ रहता है, उनकी देखभाल करने के लिए, और उनका जीवन अच्छे बीत पाता है। सो माय डियर स्टूडेंट, दिस lesson 1, a friend for a flush, you have to read this chapter nicely. When I'll take your online classes, Google Meet, then I will tell you one by one to read it. Okay, thank you, have a nice day.